Yes, so very good morning, students. So once again, I am with you to finish this alternating current chapter, and in this we will take up today two topics. One is power in AC circuits, and second is the LC oscillations and how they are useful in various circuits. LC circuit, how it is useful, that we will see. So let us start first of all the power in AC circuit. So I am presenting one this PPT prepared by Manisar. So just write the heading power in AC circuit with LCR, means LC and R means inductor, capacitor and रेजिस्टेंस है ना। तो इस तरह का सर्किट है, तो उसमें क्या होगा। तो एज वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ applied to that power circuit, AC circuit is E is equal to E naught sine omega t. So suppose this is equation 1. So you write with me only. And as we know that in a LCR circuit, the phase difference between the current and voltage is not 90 degree, uh, but it is somewhere phi, which can be in plus or negative or positive, depends upon the which type of dominated inductor or capacitor dominated circuit is there. So on that basis, we already derived that I is equal to I naught sine omega t plus phi. So where phi is the phase difference between the EMF and the current, and I naught and E naught are the maximum values of the current and voltage, and E and I are the instantaneous values. So if we want to go for the power, so what do you mean by power? Power को अगर voltage और current के form में लिखना होगा, तो what is the formula for power? All of you must be knowing. कोई बताएगा power is equal to क्या होता है in terms of EMF and current या voltage and current के रिस्पेक्ट में पावर को अगर बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं? Power is equal to definitely voltage into current, right? So instantaneous power, if we want to find out, so directly we can write E into I, है ना। जैसे VI बोलते हैं, तो यहाँ पर हम EI बोल रहे हैं because we have taken E. And just you can give this as equation 3, and if you substitute this equation 1 and 1 or 2, say E or I, that is instantaneous values रख देते हैं हम power voltage और current का, so we will get this E naught I naught sine omega t into sine omega t plus phi. So this way we can get. Now if you open this, many of you, especially those who are math students, they know how to open this sine omega t plus phi. Sine omega t plus phi means sine A plus B. So what is the, how we can expand this? Sine A plus B is equal to, Sin A cos B plus sin B cos A. yeah, cos A sin B. Sin A cos B plus cos A sin B. तो if you open with this, आप अलग से लिख सकते हैं चाहे तो। अगर इससे ओपन करते हैं and then you if you multiply sin omega t with this, you will get this, right? So you just write here, if you wish to write for your knowledge, that sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So here, if we consider this as A, omega t as A, and phi is B, and if you open and then you multiply sin omega t in both the terms, you will definitely get this. So here you can see sin square हो जाएगा because already sin omega t आएगा और उसमें sin omega t का multiply हुआ, तो you will get this sin square omega t cos phi plus sin omega t cos omega t into cos phi. So further, if you open this, what you will get, if instantaneous power is assumed to be a constant, instantaneous power है for a small interval of time, अगर लेते हैं हम dt interval, small dt interval, so उस dt interval के लिए जो वर्क डन है, वर्क डन होगा वो कितना होगा बच्चों? dw होगा। मान लिया हम लोगों ने, लिख लीजिए आप, if for the instantaneous if the instantaneous power is assumed to be constant for that particular small interval of time dt, then the work done in that small interval of time dt can be considered as dw. So what dw is? dw will be is equal to what? यहाँ पर ये था बताइए कितना हो जाएगा? E naught I naught
ये हो जाएगा, सेम लिखा है, ये भी सेम लिखा है, लेकिन आप बताइए आप क्या होना चाहिए था। एक्चुअली दिस dw अपॉन dt होता है हमारा क्या, पावर, और ये पावर चल रहा था हमारा, इट इज व्हाट, पावर, राइट, इंस्टेंटेनियस पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल टाइम में जो वर्क डन है, अगर dw है और dt उसका टाइम है, तो we can write power as dw upon dt. Rate of doing work is power. So dw upon dt is equal to this. So if dt we take this side, यहाँ की बजाय हमने क्या ले लिया, dt को यहाँ ले लेना है। आई थिंक ये मिस हो गया है, आप वहां dt लिख दीजिए, इट इज मिस्ड। सो dw is equal to e naught I naught into sin square omega t cos omega t sin omega t cos omega t into cos phi। ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा dt, ये छूट गया है। सो वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल, हमें क्या निकालना है, पावर इन एसी सर्किट निकालना है, टोटल पावर, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं, अभी टोटल पावर हम निकाल रहे हैं, एवरेज पावर निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर कंप्लीट साइकिल जाना पड़ेगा। सो कंप्लीट साइकिल जाने के लिए क्या करते हैं, आपको बताइए। सो व्हाट यू विल डू ओवर अ कंप्लीट साइकिल, इसको चाहे तो आप 4 नंबर दे दीजिए, है ना। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फॉर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए। सो डी डब्ल्यू का हो गया डब्ल्यू, और ये 0 टू टी अपना हो गया, कंप्लीट साइकिल है तो कैपिटल टी आ जाएगा, टी इज द टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड, और ये देखो डी अब यहाँ लग गया है ना, वहां छूट गया था तो वहां भी लगा लीजिए आप। सो ये हमारा हो गया। अब हम कॉमन एक्सपीरियंस, हम अभी 3-4 बार हम लोग इस तरह का ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो अब आप लोग आराम से इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पहले के बेस पर, या खुद करना चाहते हैं तो फिर से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वी आर हैविंग टू टर्म्स, दिस टर्म एंड दिस टर्म। सो इफ यू सेपरेटली सी व्हाट इज दिस टर्म, so if you closely observe this term is having cos omega t sin omega t, and if I multiply and divide by 2, it will be sin 2 sin omega t cos t। तो लिख लीजिए 2 sin omega t cos t, या 2 sin a cos a, या 2 sin theta cos theta इज इक्वल टू क्या होता है, ये सबको आना चाहिए, 2 sin theta cos theta क्या होता है, बताएंगे आप, या sin 2 सर sin, साइन टू थीटा। यस साइन टू थीटा, राइट। तो आपको माइक ऑन करके थोड़ा बोलने में टाइम लग जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई ओनली आई वेट आल्सो फॉर यू। सो साइन टू थीटा, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और 2 साइन ओमेगा टी है, कोई भी साइन वेव है या कोसाइन वेव है, अगर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 0 टू टी, तो हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि पूरा अगर साइकिल में जाते हैं तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल उनका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, कंप्लीट साइकिल में 0 होगा। तो इसलिए ये टर्म तो अपने आप में 0 हो जाएगी बच्चों, राइट। तो ये बात ध्यान रख लीजिए। सो सेकंड टर्म आप इतना लिख भी सकते हैं वर्ड्स में, नीड नॉट टू डू इट, यू कैन जस्ट राइट दैट एज दिस इज sin 2 theta, and if you integrate it from the in the whole cycle, complete cycle, the total average of this, no, total आपका जो है वो क्या होता है, एवरेज की बात भी नहीं है, 0 टू टी पूरा करेंगे तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज उतनी आएंगी तो वो 0 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट दिस, एंड केवल बच जाता है हमारे पास ये वाला टर्म, और इस टर्म का भी हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था इसमें भी 1 माइनस क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर आप कॉस फॉर्म में करेंगे तो कितना होता है, तो उस फॉर्म में भी अगर कॉस फॉर्म में करके आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो यू विल गेट, ये भी हमने पहले कर चुके हैं, तो अभी वापस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट t/2 आएगा, ये cos फाई तो बाहर निकल आएगा, e नॉट आई नॉट is also constant, तो ये बाहर निकल आएंगे, cos phi is phi is constant here, right, फेज एंगल वो इनके बीच का कांस्टेंट है, तो वो भी cos phi टर्म भी बाहर निकल आई, तो ओमेगा टी की टर्म को हमने इंडिकेट करेंगे ओवर अ कंप्लीट साइकिल, सो यू विल गेट t/2। ओके, सो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं या करके देख सकते हैं। नाउ दिस इज द वर्क डन। सो पावर, वी नो दैट पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वर्क अपॉन टाइम करेंगे, टाइम पीरियड, सो इफ यू डिवाइड इट, इसको चाहे तो आप नंबर 5 ले लीजिए, and you take is equation 6, so substituting the values, substituting the value of w from 5 and 6, dt will cancel, so you can directly get this value, so this value you will get.
So P average is equal to E naught I naught by 2 cos phi, है ना? तो ये हमारा एवरेज पावर हमने निकाल लिया. सो एवरेज पावर हमने निकाल लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. वी विल रीअरेंज इट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 2 को हम √2 बना करके दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. वी कैन राइट 2 एज √2 into √2. So why we have done this? Because we know that this is a special ratio, E naught upon √2. What is this? E naught upon √2 and I naught upon √2. ये क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है? What is this? I naught upon √2, E naught upon √2 क्या होता है? RMS value. Yes, RMS value of voltage and current. So just you replace it by RMS value या virtual value या effective value, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना? So ये आप पूरा अच्छे से हम लिख सकते हैं, है ना? तो ये क्या आ गया इसमें? सॉरी, इसको I will erase everything. Yeah. So this is called as, हाँ, तो ये वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं. एंड दिस कॉस फाई फैक्टर व्हिच इज दिस पावर, पावर आया वो किसकी वजह से आ रहा है? इन एवरेज पावर हु इज प्लेइंग द वाइटल रोल इन दिस. ये तो हो गया P इज इक्वल टू हम EV इंटू IV बोलते ही हैं, लेकिन पावर जीरो होगी या ज्यादा होगी या कम होगी, कौन डिसाइड करेगा? तो ये जो कॉस फाई है, जो फैक्टर लगा है मल्टीप्लीकेशन में, ये डिसाइड करता है कि पावर कितना होगा. तो इसलिए इसको कॉस फाई जो होता है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर. और कॉस फाई हम इजीली निकाल सकते हैं, हमने पहले भी ये किया ना, ये वाला ट्रायंगल हमारा था, तो इसमें हमने देखा था कि ये तो हमारा z होता है और ये r होता है और ये हमारा क्या होता है, XL माइनस XC वाला पार्ट होता है. तो अगर हम इसको देखते हैं तो व्हाट वी कैन से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस फाई. तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, r अपॉन z लिख सकते हैं. सो cos phi can be written as r upon z. Cos phi can be written as equal to r upon z. Can we write or not? Yes, that much we can write. Yes, sir. Cos phi is equal to r upon z. So that we can write, right? So cos phi is equal to r upon z. तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर. तो इस तरह से r upon z, and z all we know that r square, है ना, r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर. तो ये हम रूट पे, तो दिस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. बट इसको डिटेल में हमको पढ़ने का अभी जरूरत नहीं है, बट दिस यू शुड नो दैट दिस इज पावर फैक्टर, बिकॉज दिस फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एवरेज पावर, राइट? दिस इज प्लेइंग अ वाइटल रोल. सो ये हमारा, ये आपको याद रखना है. नाउ we will take different cases in which प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर सर्किट या आरसी सर्किट, जैसे हमने आपको बताया था ना कि केवल आर और सी लगे हुए हैं तो क्या होगा पावर, एवरेज पावर, दैट वी विल सी. नाउ different conditions we can take. So let us first take this P average is equal to EV into IV cos phi. Now power in AC circuit with only R, केवल R लगा हुआ है. तो केवल R लगा हुआ है तो हमने पढ़ा हुआ ये बेटा फाई क्या होता है उसके केस में, जीरो होता है, ऑल वी नो. तो ये देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द, है ना, वोल्टेज एंड करंट, तो इसलिए फाई इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए यहाँ पर. इफ यू सब्स्टिट्यूट जीरो, ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम व्हाट, ये आपका ये हो जाएगा, राइट? तो ये EV IV cos 0, that is EV into IV, means maximum power is dissipated in the resistive circuit. Pure resistive circuit है तो maximum power is dissipated in the pure resistive circuit. So this we can understand from here, right? Now similarly come to pure inductor circuit. So as you know that what is the phase difference between the voltage and current in pure inductor circuit? What is the phase difference? This much I can ask, this much right I have, better? Yes, any one of you. What is the phase difference?
Hello. In pure resistive circuit, there is no phase difference between the current and voltage. But in a pure inductor circuit and pure capacitor circuit, there is a phase difference of what angle? That only Pi we by want. 2. या पाई बाय टू, राइट. सो पाई बाय टू. अब पाई बाय टू आगे है या पीछे है, तो डेफिनेटली हियर करंट लैग्स बिहाइंड, सो वी कैन राइट दिस माइनस पाई बाय टू, ओनली दिस इज दैट, है ना. सो इन कैपेसिटिव सर्किट इट विल बी प्लस पाई बाय टू, करंट विल बी ahead. So here we can write cos minus pi by 2, but as you can write separately also, cos minus theta is equal to cos theta only, so it is cos 90. So cos 90, as all of you know, that it is 0. So it is 0 only. Similarly, in capacitive circuit, we will put pi by 2. So cos pi by 2 will again be 0. So this way, we can easily say one common conclusion we can draw, that in a pure capacitive or pure C circuit, जहाँ के only capacitance लगा हुआ है या only inductance लगा हुआ है, उन cases में the power dissipated is 0. So that's why this uh, mm, inductor and capacitor circuits are very very important, very important circuits. The practical applications of this inductor and capacitor is very much there in our this what you can say in our daily life also. These circuits are very very important circuits, so that way we can understand this, right. तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट ये हमारे काम के हैं. अब हम देखते हैं कि एल सी आर सर्किट, अगर एल सी और आर सर्किट हम लगाते हैं, ये तो हमने एल सर्किट ले लिया, सी सर्किट ले लिया और आर सर्किट ले लिया. सो इफ देर इज एल सी आर सर्किट, सो LCR सर्किट में क्या होगा? सो डेफिनेटली दिस P एवरेज इज इक्वल टू दिस, मैं बता रहा हूं, हमने ये लिखा हुआ ही है, वर्चुअल वैल्यू या एवरेज वैल्यू जो भी है, या इफेक्टिव वैल्यू बोल सकते हैं इसको. तो एज वी नो दैट इन LCR सर्किट 10 फाइ या फाइ की बोल सकते हैं हम, 10 फाइ बोल दें, इज इक्वल टू, हम जानते हैं एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन क्या होता है हमारा, आर होता ही है. दैट मीन्स फाइ इज इक्वल टू डेफिनेटली 10 इनवर्स, हम जानते हैं एक्सएल माइनस एक्सी. इसको आप एक्सी माइनस एक्सएल भी लिख सकते हैं इफ यू कंसिडर इट इज व्हाट कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट, तो आप ये ऐसा लिख सकते हैं ना. So in this LCR circuit, रेजोनेंस सर्किट नहीं है, इट इज अ नॉन रेजोनेंट सर्किट. सपोज LCR सर्किट है, तो उस केस में द फेज डिफरेंस is neither 90 डिग्री नॉर 0 डिग्री नॉर पाई बाई 2, कुछ भी नहीं है. तो उस केस में हमारा जो LCR सर्किट होगा, उस केस में क्या होगा, एवरेज पावर डेसिपेटेड क्या होगा, E एवरेज P एवरेज इज इक्वल टू EV IV cos phi होगा. दैट मीन्स इट विल बी नाइदर जीरो नॉर मैक्सिमम. लेकिन इसी में मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड कब होगा, इसी सर्किट में, जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी. तो आप इसमें फोर्थ कंडीशन लिख लीजिए कि नॉर्मल एलसीआर सर्किट है, ये नॉर्मल एलसीआर सर्किट है, तो उसमें तो पावर डिसिपेटेड जो होगा पी एवरेज इज इक्वल टू ईवी इंटू आईवी इंटू कॉस फाई होगा, राइट. फोर्थ कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकंड कंडीशन हो गया और ये थर्ड कंडीशन. सो दिस इज फोर्थ कंडीशन इन द नॉर्मल एलसीआर सर्किट, as this 10 phi is equal to XL minus XC, and in this case XL is not equal to XC, so there will be some value of phi between 0 degree to 90 degree, suppose. So definitely power dissipated will be somewhere between 0 to more than 0 and less than EV IV, itni hogi definitely, right. Understood this much, right. So now last circuit is nothing but that is the LCR circuit only, but it is a special type of LCR circuit, resonance circuit. At resonance, so at resonance XL is equal to XC हो जाता है. तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली XL is equal to XC हो गया, तो LCR सर्किट at resonance लिख दीजिए, LCR सर्किट only but at resonance.
So the power dissipated at resonance in the LCR circuit will be how much? As XL is equal to XC, XL is equal to XC हो जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? phi is equal to 0 हो गया. And when phi is equal to 0, so we can rightly say that ये जो हमारा क्या आ गया था? पावर इन AC सर्किट आ गया था विथ रेजिस्टेंस R उतना ही. phi is equal to 0 आ गया, तो ये उतना ही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल रेजिस्टर सर्किट की तरह बिहेव करेगा. सो ये this is the maximum power is dissipated in this circuit through R only, but है ना, because XL और XC equal हो चुके हैं. So the maximum power which is dissipated in this circuit through R at resonance will be EV into IV. So I hope this much is clear to all of you. So is it clear now? Any doubt in Yes. this? Tell me. No. Okay. Yeah, thank you. So now the next topic in this I'll be taking up. So and that I will take up is that the LC oscillations है ना. What is L और C? L और C अगर लगा हुआ है तो इस तरह के सर्किट का क्या क्या फायदे होते हैं हमारे, उसको हम देखेंगे. अच्छा, इसी में मैंने RC और ये LR भी अगर वैसे LCR में अगर है, तो अगर आप LC या RC सर्किट लोगे तो उसी तरह से R इक्वल टू 0 रख देना है. उसी तरह से फाई की कुछ वैल्यू आएगी, 10 फाई समथिंग होगा, तो उसी तरह से आपका फाई की वैल्यू के बेस पर पावर डिसिपेटेड इन LR सर्किट, LC सर्किट, RC सर्किट भी उसी तरह से आ सकते हैं. जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. जब X मान लो कौन सा सर्किट है हमारा, L और R ही है, तो XC क्या हो जाएगा? वहां 0 हो जाएगा. तो 10 फाई कितना हो जाएगा? XL अपॉन R, XL अपॉन R हो जाएगा 10 phi, या phi is equal to XL अपॉन R. तो समथिंग विल बी देयर, phi की कुछ वैल्यू होगी, तो उस बेसिस पर उतना पावर डिसिपेशन आएगा. ओके, सो दैट मच इज क्लियर आई थिंक. नाउ as I told you when we were studying that LCR circuit at resonance also, तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो ये LC circuit होता है, it is having a lot of applications in our daily life also, and especially in tuning the radio, है ना. तो tuning of radio receiver, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए. तो उसमें किस तरह का सर्किट बनता है? उसमें ये होता है कि हमारा L हो गया और ये हमारा C, इस तरह से ये लगा दिए जाते हैं. तो ये इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं LC, टैंक सर्किट भी बोला जाता है, बिकॉज इसका शेप आप देखेंगे तो इट इज अ टैंक शेप. और यहां पर हम लगा देते हैं, ये रिसीव करने हम सिग्नल्स को टू द रिसीवर, ये जा रहा है टू द रिसीवर, राइट. और यहां पर ये जो है हमारा, यहां पर हमने एंटीना वगैरह लगा दिया है, तो ये हमारा इस तरह से ये हमारा अर्थिंग कर दिया है और ये एंटीना है. तो हमें जो बाहर के जो रेडियो सिग्नल्स हैं, अभी हमें EM वेव्स में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट बाहर के सिग्नल्स हैं हमारे, वो हमको अगर रिसीव करने हैं जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आ रहे हैं. जैसे मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी पर ये सिग्नल आ रहा है, मान लो मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि पूना रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है समथिंग, इट इज गिवन दैट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो उस पे आ रहा है. अब हमें हमारा रेडियो सेट को ऑन करना है, तो उस रेडियो सेट में LC कॉम्बिनेशन का एक टैंक सर्किट लगा हुआ है, और इस टैंक सर्किट का फ्रीक्वेंसी हमें एग्जैक्टली इसकी जितनी करनी है. तो जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएगी तो इट विल बी व्हाट, the current will be maximum, and hence that it will catch that frequency, and that in that case the radio set will be called as tuned. उसको बोलेंगे tuned हो गया. तो हमें जैसे पता ही है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ FR या न्यू R बोल दीजिए, हमारा जो क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 पाई अंडर रूट LC. तो डेफिनेटली ये तो फिक्स है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हमें ये फ्रीक्वेंसी जो FR या न्यू R है, उसको हमको ये जो न्यू P है जो पुणे रेडियो स्टेशन की आ रही है या और किसी रेडियो स्टेशन की आ रही है, उसके इक्वल करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेडियो सेट का ट्यून करना पड़ेगा. हम नॉब घुमा के करते हैं कि नहीं, वो मीडियम वेव या
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है तो नासिक रेडियो के ही बहुत सारे होंगे, एफएम बैंड है, और बाहर के हैं तो दूसरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो सिग्नल्स है इनको हमको अगर सेम करना है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल करना पड़ेगा। रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, तो हमें उस रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी उतनी ही लानी पड़ेगी जितनी इतनी है। तो वो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं एल तो फिक्स्ड है, दिस द इंडक्टर जो होता है जनरली वो इंडक्टर का इंडक्टेंस फिक्स होता है, मींस यू कैन नॉट चेंज दिस, सो व्हाट यू कैन चेंज, चेंजेबल होता है कैपेसिटर। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ा दिखा दीजिए इसको। So the capacitor is a variable capacitor, means you can vary the capacitance. So if you go on varying the capacitance, मान लीजिए अभी जो हमारी इसकी रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी इस रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हमें बढ़ानी है। तो बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, सी को इंक्रीज करेंगे या कम बढ़ाएंगे बच्चों, हमें एफ बढ़ाना है तो सी को क्या करेंगे, मान लीजिए ये कम है, एफ हमें बढ़ाना है, ये जो न्यू या जो भी है उसको बढ़ाना है, ये हमारी कम है उससे, तो सी को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सी को कैपेसिटर की वैल्यू माइक्रोफैराड में या जो भी है उस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ या न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी है, यहां देख लीजिए। सो इफ आई वॉन्ट टू डिक्रीज दिस, चलो उल्टा ले लो, अगर f को मुझे डिक्रीज करना है या न्यू को डिक्रीज करना है तो मुझे c को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली बेटा इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं, टेल मी, हेलो। यस सर। हाँ माइक ऑन कर लीजिए और बताइए क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा, ये बताइए, व्हाई आई विल हैव टू इंक्रीज सी, व्हाई? Yes, because F और C कैसे हैं आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी गुड, है ना? तो जस्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप क्या करिए बच्चों, अपने माइक को इसी कंडीशन में रखिए कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं तुरंत आप वो माइक ऑन कर सके ना। ये टाइम जो डिले हो रहा है ना थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना? So this C we will have to increase, though we can increase the L also, but there is no such arrangement is given here, so we can change only C because that is easy. तो ये जो हम नॉब घुमाते हैं वो क्या घुमाते हैं, we change the capacitance. Okay, so by changing the capacitance we match the frequency of our radio set with the radio station frequency. Okay, so that way this is the mechanism. So now हमारा इसी तरह से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इसी में इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, एंड वी विल कम टू द ऑसिलेशंस। इस तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि इंडक्टर जो होता है और कैपेसिटर होता है, इंडक्टर में किस तरह की एनर्जी होती है बच्चों, which type of energy is filled in inductor and which type of energy is filled in oscillator, right? Tell me, and how much it is there, ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, if you remember, we have proved that, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, we can have a recap of this. If you see the capacitor is filled with the electric energy, electrostatic energy हम जो बोलते हैं, energy stored in capacitor, C जो अगर इसका कैपेसिटेंस है और हमारा जो है V पोटेंशियल लगा हुआ है, तो the energy stored in a capacitor we know that half CV square, if you remember, ये रखना ही है आपको याद, half CV square होता है, इसी को हम लोग half Q square upon CV बोलते हैं, इस फॉर्म में भी बोलते हैं, तीन तरह से बोला जा सकता है। So this we all know that this is the energy stored in a कैपेसिटर। लेकिन अगर कैपेसिटर के साथ हमने इंडक्टर भी लगा दिया एंड वी हैव अलाउड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, सो व्हाट विल हैपन,
the capacitor will go on discharging, means it will give the energy, and who will take the energy? Who will take the energy? That inductor will take the energy. So the energy will be stored in the inductor. इंडक्टर में वही एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी. और वो कितनी हो जाएगी वो भी हमने डिराइव किया था. किसी को याद है बच्चों अभी? तो बताइए, नहीं तो मैं तुरंत आपको वो डिराइव करके बता देता हूँ. ये तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आई थिंक ऑलरेडी वी हैव डिराइव, है ना. ये चैप्टर आपका 1 और 2 में हुआ था. फिर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब हमने पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि दिस अनदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वो स्टोर्ड जो होती है, वर्क डन किया जाता है इंडक्टर के द्वारा, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है. वो अगर तुरंत कोई बताता है तो बताइए, अदरवाइज आई विल डिराइव दिस ऑल्सो. दिस, नॉट दिस, बट दैट आई विल डिराइव. सो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जल्दी से लिख लीजिए. इट इज अ स्मॉल डेरिवेशन, though the derivations are not coming to you, but you should know how it has come. So suppose, likh lijiye heading, the energy stored, or I should do it on the whiteboard, that is more comfortable for me. So I will end this show. Yeah, I will keep this also, and we'll go for the this one. So write the heading, energy stored in an inductor. In an half Li square. Inductor, yes. So energy stored in an inductor. So when a current grows through the inductor, a back EMF is induced. आपको पता ही है ना, जो अगर हमने इंडक्टर लगा रखा है इंडक्टर किसी सर्किट में, तो अगर करंट ग्रो हो रहा है, जैसे करंट कैसे ग्रो हो रहा है, अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहां पर करंट ग्रो हो रहा है, तो क्या होगा? ए बैक EMF is set up, right, which opposes the growth of that current, and so work need to be done against the back EMF, right, in the building up of that current. So this work done is stored as the magnetic potential energy in the inductor, that all of us we know. So उसको हम मान लेते हैं कि चलिए I is the current through that inductor, and L is the inductance of that inductor. ये जो इंडक्टर दिया उसका इंडक्टेंस L है, और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर करंट I है. अब करंट राइजेस एट द रेट ऑफ सपोज di by dt, लिख लीजिए. इफ एट द रेट ऑफ di by dt दैट करंट इज राइजिंग, सो द इंड्यूस EMF E जो हमारा होता है, इंड्यूस EMF अगर मान लेते हैं, यहाँ हम कहीं पंजाब को एप्सिलॉन के फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट वी ऑल नो दैट माइनस L di by dt, इतना हम जानते हैं बच्चों, राइट. Now the work done is against this, right? इसको नंबर 1 ले लेते हैं. Now the work done is against the induced EMF in small time dt. वो कितना हो जाएगा? dw is the work done. वो निकाल लेते हैं. So p into dt होगा. So हम ये रख देते हैं वैल्यू. p की जगह पर हम क्या रखेंगे? e into I ले लीजिए, and this will be negative because it is opposing. So ये हो गया हमारा. इसको नंबर 2 ले लीजिए. Now if you substitute the value of E in this, what will happen? Using 1 and 2, what you can write is dw is equal to what? ये हम रख देंगे, तो minus of minus will plus L di by dt into I dt, right? So that we can write L I di. इसको आप नंबर 3 ले लीजिए. And now we will find out the total work done. So how total work will be calculated? ये dw हमारा आ गया, टोटल वर्क निकालना है, क्या करेंगे? We'll integrate it. So w will be equal to L हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया. I का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू di? I का इंटीग्रेशन जल्दी बताइए. I square by 2. I square by 2. और कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है? डेफिनेटली जीरो से राइज होकर के कितनी मैक्सिमम करंट आ जाए वहां तक हमको इंटीग्रेट करना है. सो जस्ट यू राइट इट. सो दिस इज I square by 2 and this is 0 to I naught. So if you substitute it, it will be I naught square by 2 minus 0 square by 2. So this is nothing but the total energy stored in the inductor in the form of magnetic potential energy, we say that, and that W we can write as U,
एंड दैट इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ आ गया बाहर, एल आई नॉट स्क्वायर। सो ये आपको याद रखना है, दिस इज अ माइलस्टोन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वी आर गेटिंग। तो ये जो हमारा हाफ सी वी स्क्वायर है वो हमारे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, वैसे यहाँ पर ये स्टोर्ड एनर्जी है हमारे इंडक्टर में। तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो अगर हमने एल और सी ऐसा एक सर्किट बना रखा है तो क्या होगा, अगर कैपेसिटर में हमने क्यू नॉट चार्ज दे रखा है मैक्सिमम, और उसकी वजह से उसमें हाफ सी वी नॉट स्क्वायर एनर्जी उसमें स्टोर्ड है मैक्सिमम। अब वो अगर डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा, डिस्चार्ज होता है तो वही इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर में करंट चेंज होगा तो वहां पर वो विरोध करेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाएगी। पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर इंडक्टर अपनी एनर्जी देगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये प्रक्रिया क्या होगी, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इफ दैट एनर्जी इज नॉट गेटिंग वेस्टेड इन द एटमॉस्फेयर in the form of heat or in the form of any other thing, if it is not getting wasted, तो ये जो चलता रहेगा सिलसिला, और ये जब सिलसिला चालू होता है और इस तरह से ये मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक में कन्वर्ट होती जाती है, तो ये तो जो एक निश्चित समय के बाद होती जाती है, और इस तरह की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं एल सी ऑसिलेशंस, एल सी ऑसिलेशंस इसको बोला जाता है। सो दिस ऑसिलेशंस आर कॉल्ड LC oscillations, राइट। तो यही यहाँ पर बहुत सुंदरता से हमारे मनी सर ने दिखाए हुए हैं। आई वुड लाइक टू शो यू द ब्यूटी हाउ इट इज चेंजिंग, इंटरचेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही आधारित है ये, बिकॉज यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि there is no loss of energy is taking place, but one stored energy in a capacitor is converting into that what. So in this slide form I am showing it to you. तो यहाँ पर आप मान के चलिए C कितना है, जो स्टोर्ड एनर्जी है यहाँ पर कैपेसिटर के पास शुरुआत में, फर्स्ट ये ले लीजिए। चलो मैं इसको तो मिटा देता हूँ, erase everything। मैंने अच्छा इसको सेव कर लिया है, so I think it will not be erased. So ये हमारे पास इतनी है। चलिए अभी क्या हुआ, थोड़ी सी इसने क्या दी एनर्जी, तो एट t इक्वल टू 0 u e इज मैक्सिमम। सो दिस u e, यहाँ पर ये u e है ना, इसमें जो एनर्जी है कैपेसिटर में ये u e है, तो u भी कितना होगा, मैक्सिमम। द मैग्नेटिक एनर्जी इन दिस इंडक्टर इज 0। चलिए सेकेंड केस में क्या हुआ, थोड़ा सा ये डिस्चार्ज हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ हुआ, तो यहाँ पर चेंज ऑफ करंट हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ी सी क्या आ गया, यहाँ से आधा मान लीजिए, अभी हम लोग आधा मान रहे, आधी डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ पर उतनी ही आधी मैग्नेटिक एनर्जी में वो तब्दील हो गया। तो यू ई इज इक्वल टू यू बी हो गया सेकेंड केस में। इन हाउ मच टाइम इंटरवल, 1/8 टाइम पीरियड। थर्ड केस में पूरी तरह से यू ई ये डिस्चार्ज हो गया, देखो देयर इज नो चार्ज यू कैन सी ऑन द कैपेसिटर, और यहाँ पर ये पूरी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी में तब्दील हो गया है। सो 2T/8 बोल सकते हैं, या यूं कह सकते हैं T/4, बट बेटर टू राइट 2T/8 बिकॉज फुल साइकिल कैसे चलती है हम लोग को इसको समझने में आएगा बहुत बढ़िया से, सुंदरता से। सी नेक्स्ट वन, व्हाट विल हैपन नाउ दिस इंडक्टर will give its energy, magnetic energy, and now as it is got energy in this direction, so अब ये discharge होगा तो इस तरह से होगा, ये जा दे रहा है अपनी energy। So if this is giving this energy, so what will happen, at a later state the capacitor gets fully discharged and potential difference across the plates becomes 0। यहाँ पर potential difference across 0 हो गया। The current reaches its maximum value I0, यहाँ पर आ गई है, 0 to I0 इंक्रीज हुई। अब 0 to I0 इंक्रीज होने में इतना ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, हाफ L I0 स्क्वायर, हाफ L I0 स्क्वायर एनर्जी यहाँ स्टोर्ड हो गई है। इसको आप लिख लीजिए चाहिए तो, दिस इज हाउ मच, हाफ L I0 स्क्वायर एनर्जी यहाँ स्टोर हो चुकी है अभी। और सॉरी इस केस में थर्ड केस में अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है, हाफ L I0 स्क्वायर एनर्जी जो थी वो दे रहा है। अब दे रहा है तो क्या होगा, राइट
half L. Thus, the entire electrostatic energy of the capacitor has been converted into what? The magnetic field energy of the inductor. Now, after the discharge of capacitor is complete, now the magnetic field, the magnetic flux linked with the inductor decreases. अब ये magnetic flux इसके साथ जो है वो decrease हो रहा है, inducing the current in the same direction by the Lenz law, है ना? As the earlier current. तो अब क्या होगा? The current thus persists through this decreasing magnitude, and what will happen? The magnetic energy of the inductor begins to change into the electrostatic energy of the capacitor. This process continues till the capacitor is fully charged, but it is charged with the polarity opposite to that in the initial stage. That's why the entire this magnetic energy is now again stored in the form of electrostatic energy. वापस से वो स्टोर हो जाएगी, और अभी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? ये देखो, यहाँ पर ये वाला कंडीशन आया कि दोनों इक्वल हो गए, और यहाँ पर वापस से ये स्टोर होगी वही वाली फॉर्म में है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी फॉर्म में ये यहाँ स्टोर हो गई है हमारी। ये अभी बिल्कुल से डिस्चार्ज हो गया है, मतलब यू बी हमें अभी क्या हो गया? 0 हो चुका है। तो इस तरह से ये पूरा एक ये हो गया है। इसमें हम लोग इसको कह सकते हैं 4t/8, मतलब t/2 मतलब आधा टाइम पीरियड हो चुका है। आधे टाइम पीरियड में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन हमें पूरी प्रक्रिया करनी है, मतलब हमारा ये फर्स्ट स्टेज आ जाए हमारी, ये हम चाहते हैं। तो वापस क्या होगा? ये वापस अब ये डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो इस बार क्या होगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी ये इस तरह से था, क्लॉकवाइज थी मान लो, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गया। नाउ इट इज डिस्चार्जिंग बट विद अपोजिट पोलैरिटी। तो ये अभी ये हो गया, फिर वापस से पूरी तरह से ये डिस्चार्ज हो गया, फिर वापस ये हो गया, इस तरह से वापस अभी चार्जिंग हो गया, और अब आप लास्ट में देख सकते हैं कि ये जो पहला केस था वैसे हम वापस पहुंच चुके हैं। ये 9th कंडीशन एंड फर्स्ट कंडीशन इज एग्जैक्टली सेम, उसी जगह पर पहुंच गए। तो ये पूरा एक टाइम पीरियड हमारा हो चुका है। सो दिस वे इट इज देयर, एंड दिस टाइप ऑफ चेंजिंग ऑफ दिस converting, thus the energy of the system continuously surges back and forth between the electric field and of the capacitor and the magnetic field of the inductor. This produces electric oscillations of the definite frequency f naught, और उसी को बोलते हैं what? LC oscillations। इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? LC oscillations। And as we know that if there is no loss of energy, then the amplitude of oscillations remains constant। एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा oscillations का, मतलब अगर हम साइन वेव बनाते हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू, वो उतनी ही रहेगी हमेशा, है ना? remains constant। So we can show this if remains constant with the time t। ये देखो, ये Q चार्ज है, और ये हमारा आप देख सकते हैं कि Q नॉट, उतना ही Q नॉट जा रहा है, उतना ही चार्ज वापस आ रहा है उसके पास हर पूरे साइकिल के बाद। ये इस टाइप के ऑसिलेशंस को हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। ये हम लोगों ने मैकेनिक्स में वेव्स और ऑसिलेशंस में हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, लेकिन अभी हमें ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है उस फॉर्म में करना है। वहां पर हमने सिंपल पेंडुलम के लिए किया था, याद है आपको ना? अगर वो सिंपल पेंडुलम सेम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है, तो हमारा इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। और अगर डैम्पिंग हो रहा है, बिकॉज देयर आर हाउएवर एलसी ऑसिलेशंस आर जनरली डैम्प्ड होते हैं, मतलब क्या है? विद टाइम द टोटल एनर्जीज गेटिंग लेसर एंड लेसर, थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो रहा है। सो आर यूजुअली डैम्प्ड ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस। दो हमने बताया कि ये इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है ना? सो दिस कॉजेस द एनर्जी लॉस एज अ हीट। तो कुछ वो इंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है, एंड हेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, and ultimately it dies out. Secondly,
इवन इफ द रेजिस्टेंस वर जीरो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मान लीजिए कि पूरा हमारा क्या है, रेजिस्टेंस पूरा जीरो है उस पूरे सर्किट का, एलसी सर्किट का, लेकिन वुड उसके बाद भी हमारे पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह पाती है, थोड़ा सा रेडिएशन होता है, रेडिएशन के थ्रू भी हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, इट इज रेडिएटेड अवे, सम ऑफ द एनर्जी इज रेडिएटेड अवे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी थोड़ा सा एनर्जी रेडिएट होकर निकल जाती है। तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस में अभी दिखा देता हूँ आपको बहुत बढ़िया से, ये देखिए। So you can see with the time the amplitude is going on decreasing and ultimately it is getting what? Zero. So such type of oscillations are called damped oscillations. Understood? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको। और ये डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी, सॉरी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है हमारे, तो उसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली इन योर सिलेबस, उसको डिराइव करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि हम जानते हैं बच्चों, ये जो हमारी एनर्जी थी माइनस एल डी आई बाई डी टी जो हमने किया था, राइट, ये हमारा किसके इक्वल था? v के इक्वल था, v या e के इक्वल था, और उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? माइनस क्यू बाय क्यू बाय सी लिख सकते हैं, v इज क्यू इक्वल टू वी सी होता है, तो हम क्यू बाय सी लिख सकते हैं। तो इसी को हम माइनस को इधर लाते हैं तो हमारा ये इक्वेशन बन जाता है, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाय सी इक्वल टू 0। और अगर हम ये i की वैल्यू, i इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डी क्यू अपॉन डी टी होता है, जानते हैं हम लोग, है ना? तो ये डी क्यू अपॉन डी टी आप लिख देते हैं इसमें, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस डिफरेंशियल फॉर्म। हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, राइट, वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। और ये इक्वेशन हम इस फॉर्म में अगर लिख दिया तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जो मैथ्स वाले हैं वो जानते होंगे, नॉन मैथ स्टूडेंट्स जस्ट रिमेंबर दैट ये स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहलाती है। और इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो ये जो क्यू है, ये जो है वेरिएबल, ये हमारा जो हम इसको अगर मैथमेटिकल वे में इसको डिराइव करें तो ये क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू रख सकते हैं इसमें, या 1/LC की जगह पर ओमेगा स्क्वायर रख दिया, और इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, ये इक्वेशन जो आ गया हमारा देखो ओमेगा के फॉर्म में, इसको अगर सॉल्व किया जाता है तो यू गेट द फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विथ ओमेगा एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो हमारा ओमेगा इज इक्वल टू जो आता है वो कितना आता है? 1/√LC आता है। ये हम इसको निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं, तो ये हमें अभी निकालना नहीं है हालांकि, बट इफ यू डिराइव्ड फॉर q, तो ये q की वैल्यू आ जाएगी हमारी, q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी आ जाएगा इसमें, अगर डिराइव करेंगे ना इसको और q निकालेंगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट टाइप ऑफ इक्वेशन, ओमेगा नॉट क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, ये आ जाएगा हमारा। और इसमें हम लोग इसके आधार पर ये ओमेगा नॉट की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होती है, 1/√LC होती है, तो वो हम इसमें लिख सकते हैं। तो दिस डेरिवेशन इज नॉट देयर, बट यू शुड नो दैट this idea you must have that this is a differential type equation, and if you differential equation का solution ये होता है q का, सॉरी ये dq by dt का होता है, इसमें आप ये होता है, और q तो होगा हमारा, q कितना होगा? q नॉट cos ओमेगा टी होगा, ओमेगा नॉट टी, ये q हो गया। और i का इक्वेशन हम निकालेंगे तो ये cos ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये sin ओमेगा टी, सॉरी, तो ये हो जाएगा sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, और ये ओमेगा नॉट साथ में आ गया, cos ओमेगा टी इज sin ओमेगा टी, माइनस sin ओमेगा टी बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना? तो ये उस फॉर्म में cos ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस sin ओमेगा टी, तो E इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस क्यू डी क्यू बाई डी टी ले सकते हैं, और ये हमारा cos ओमेगा टी माइनस sin ओमेगा टी होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर Q एंड I, वेयर Q इज इक्वल टू क्यू नॉट cos ओमेगा टी आएगा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो, जो आपको सॉल्व करना अभी नहीं है।
ये क्वांटिटेटिव आइडिया नहीं है, आपको क्वालिटेटिव आइडिया है। तो क्वालिटी में अगर केवल ध्यान रखें Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी आता है, और उसमें हम I निकालते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो यही होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होती है। तो ये इस ऑसिलेशन की ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और ये कंजर्व्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशन, ये भी हम डिराइव कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, कि किस तरह से ये एनर्जी कंजर्व होती है। तो दैट इज आल्सो कैन बी डन। So in just 5 minutes, I will just derive that also. How that energy is conserved in LC oscillation if it is not getting dissipated or wasted in some other form. So just you write conservation of energy in LC oscillation. लिख लीजिए, conservation of energy in LC oscillations. How it is conserved? LC ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी आ जाती है, वो हमें डेफिनेटली मैथमेटिकली नहीं करना है, क्वालिटेटिवली इसलिए बता दिया। बट दोज हु वांट टू डू, दे कैन गो फॉर दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन आल्सो। I will guide them if they ask me, but now we have not taken that. Okay, now as we know that UE is equal to, हमें पता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C होता है। लिख लीजिए, it is the what electrostatic energy stored in a capacitor. Write this first equation quickly. As we know that the electrostatic energy stored in a capacitor is half Q square by C. Written? Yes, sir. Now similarly, the magnetic energy stored in a inductor at any instant of time is UB. जनरली हम लोग UB बोलते हैं। तो ये हाफ L I स्क्वायर। I स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं, I नॉट नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज एट एनी इंस्टेंट की बात चल रही है। इट इज नॉट द मैक्सिमम एनर्जी, एट एनी इंस्टेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज दिस मच एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज दिस मच, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम जो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं होता है ना, ये हमें प्रूव करना है। सो जस्ट एज द सम ऑफ दिस पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने 11th में किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे थी, हमारी कांस्टेंट थी, टोटल सम जो है कांस्टेंट हुआ करता था। The sum of energy stored in a capacitor and inductor also remains in constant during this LC oscillations. So at any instant, suppose the electrostatic energy is this much and magnetic energy is this much. So suppose हम मान के चल रहे हैं कि there is no resistive loss of energy, कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये मान के चल रहे हैं। वो लिख लीजिए, if there is no resistive loss या any other loss in the रेडिएशन फॉर्म में थोड़ा होता है, बट हम मान के चल रहे हैं अभी फॉर द सिंप्लिसिटी कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, देन द टोटल एनर्जी ऑफ दिस एलसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट विल बी, कितनी होगी टोटल एनर्जी? सो टोटल एनर्जी लिख लीजिए, टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी यू मान लीजिए हम, तो यूई प्लस यूबी होगी कि नहीं, उस पर्टिकुलर एलसी सर्किट की टोटल एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी। ऐड कर दीजिए इसको, राइट, क्लियर। नाउ अभी हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने डिराइव किया, उसमें Q इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एज Q इज चेंजिंग, Q इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सो Q इज अ वेरिएबल। जैसे I हमारा वेरिएबल था, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग, वैसे ही Q इज इक्वल टू ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, साइन Q नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल है और अगर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो लिख लीजिए, इसको नंबर 3 यू कैन गिव and you can write that Q is equal to Q naught sin omega t. Now on that basis को number 4 ले लीजिए, differentiate it.
सो I will be equal to dq upon dt. सो ये हमारा कितना हो जाएगा, अभी हमने पहले भी आपको प्रूव करके बताया, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस होगा, कॉस को करते तो माइनस साइन हो जाता, तो इसलिए हमने यहाँ अवॉइड किया कॉस, क्योंकि वहां माइनस आ जाएगा, दो द रिजल्ट विल बी सेम, बट फॉर अ सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन व्हिच वेव, साइन वेव इंस्टेड ऑफ कॉस वेव, राइट. यू कैन गो विथ कॉस वेव आल्सो, नो इशू, वही रिजल्ट आने वाला है अल्टीमेटली, लेकिन मैंने यहाँ पर साइन वेव ले लिया. अंडरस्टूड? Any doubt in this? No, sir. Okay. So now, if you differentiate, Q naught is maximum value, sin omega t का हो गया cos omega t, omega naught t, and omega naught t का differentiation हमारा omega naught हो ही रहा है, तो वो हम साथ में लिखेंगे. तो ये हमारा equation 5 हो गया. Now, substitute the values of this Q and I from this equation 4 and 5 in equation 3. यहाँ Q की वैल्यू रख दीजिए और I की वैल्यू रख दीजिए. क्विकली do this much. So using equation 3, 4 and 5, substitute the value of Q and I in equation 3. Quickly do this much. थोड़ा कैलकुलेशन हमारे साथ आप करिए. Right? Plus half L is constant only. I की जगह पर यह आ गया. Right? Okay. Any doubt in this? Now again you know that omega naught square क्या होता है? As we know, मैं equations ज़्यादा बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर रहे. 1 upon LC, because omega naught is equal to 1 upon root LC होता है, तो omega naught square हो गया हमारा LC. तो रख दीजिए वैल्यू. Using 6 and 7 we can write U is equal to 1 upon 2c Q naught square sin square omega naught t plus half L. This Q naught square will be like that only, and this omega naught square की जगह पर हमने 1 upon LC रख दिया. ऑलरेडी यहाँ पर L है हमारे पास ना, यहाँ पर L है, LC, and this is cos square omega naught t, right? So this L will cancel with L. So what you got? 1 upon 2c is here also. 1 upon 2 into c here also. Q naught square is here also, here also. So you take it out. So what will happen? 1 upon 2c and this Q naught square also you're taken out. So what will remain inside? Sin square omega naught t plus cos square omega naught t. So this is a very very popular identity, you must be knowing. सभी को मालूम है ना क्या होता है कि नहीं पता है? क्या वैल्यू होती है इसकी? 1. So Q naught square upon 2c into 1 आ गया हमारा. तो हम ये देख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लीजिए या इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर लिख दीजिए. सो दिस इज अ कांस्टेंट बिकॉज दिस इज अ पीक वैल्यू, राइट? Peak value is a constant. Q naught square is a constant. This peak value is constant. Capacitance of a capacitor is constant. So this is total energy which is constant. हमारी आ गई initial energy. Initial total energy जो पहला केस लिया था ना हम लोगों ने, जहां पूरी तरह से कैपेसिटर क्या है, चार्ज है. तो चार्ज कैपेसिटर की टोटल एनर्जी कितनी थी? इतनी थी या इतनी थी. तो उतना आ गया कि नहीं? देखो हमने इन बिटवीन किसी इंस्टेंट पर दोनों की एनर्जीज को लेके चले, जो कि कितनी थी? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी थी और हाफ एल आई स्क्वायर थी और हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी थी, और हमने इनको जोड़ा तो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोग कितनी लेकर के आ गए? हाफ सी वी नॉट स्क्वायर. सो विच इज इनिशियल एनर्जी. So that shows that concludes from this we can conclude that the total energy remains constant
So this confirms the law of conservation of energy also. The electrostatic energy and the magnetic energy of any instant of time in between that process, जब discharging charging हो रही है, तो किसी भी क्षण पर हम दोनों एनर्जीज का जो इंडक्टर और कैपेसिटर में है, उन दोनों एनर्जीज का किसी भी क्षण पर हम अगर टोटल करते हैं, तो वो हमारा जो पहले जो टोटल एनर्जी हमारी थी शुरू में जब पूरी तरह से कैपेसिटर चार्ज था, उस समय जो उसके पास एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी टोटल होती है, राइट. So this is a wonderfully we can mathematically also we have seen, वहां पर हमने इन डायग्राम से भी देख लिया. So I think this much is clear to all of you. So with this we can stop this session. Thank you very much.